See what happens is, uh, suppose we are taking a strong base as a titrant or analyte in a flask, and we are pouring in strong acid from the top, ठीक है, with the help of burette. और strong base जो लिया है इस flask में, let us suppose, वैसे आइडियली क्या रहेगा कि इसका कंसंट्रेशन हमको पता नहीं रहेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस का कंसंट्रेशन, चूंकि ये एनालिट है इसलिए हमको इसका कंसंट्रेशन पता नहीं रहेगा, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन पता रहेगा। स्ट्रॉन्ग बेस का क्या रहेगा, एनालिट का क्या पता रहेगा हम लोग को, ओनली द वॉल्यूम, राइट। एनालिट, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, and initial volume taken is volume taken V1 ml, we can make it 50 ml। जनरल लेना है हमें तो V1 ml लेंगे, और अभी स्पेसिफिक केस में आई एम टेकिंग इट 50 ml। On second part, I am using a strong acid, इसका कंसंट्रेशन हमको पता रहेगा, इसका कंसंट्रेशन अननोन है, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन हमको पता रहेगा, लेट अस से इट्स कंसंट्रेशन इज 0.2 मोलर, ठीक है। और the volume which is required, volume required at end point, volume at end point, let it be 50 ml, let it be, I mean generic it will be V2, specific for this case let me assume it to be 50 ml, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग है, ये पूरा का पूरा 50 ml एक बार में हम डाल नहीं पाएंगे। if we are putting it by burette, we will be pouring this 50 ml in small drops, right? Or in small amount. Step addition of this strong acid, the titrant will be done into the analyte solution, ठीक है। इस प्रोसेस में दो चीजें होंगी, पहला चीज क्या होएगा, the moment a drop of acid is coming into this flask, number one, the volume of solution will increase. The volume of, ऐसे लिखते हैं, the titrant strong acid is being added to the analyte base in drops as soon as the drop of acid
decreases the volume of the solution. The second thing it does is it neutralizes some amount of base present in the base present in the flask. Due to this, the pH of the system will change. Am I making sense? इस फ्लास्क में बेस है, मैं ऊपर से एसिड डाल रहा हूँ, जैसे जैसे इसमें का बेस न्यूट्रलाइज होगा, the concentration of net base in the flask, will it increase, decrease or remain same? ऊपर से एसिड ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, अंदर जो बेस है न्यूट्रलाइज हुआ, तो बेस का कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा? It will surely decrease. ठीक है, और बेस का कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज कर रहे हैं मतलब OH माइनस का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, और OH माइनस का कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब है H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी pH of the system is changing. Is it okay? Fine. Next thing is calculation. ये दो चीजें करने के बाद इन दोनों को कैलकुलेशन में अकोमोडेट करना होता है. Quantitative में we have to accommodate these 2 points into the calculation. कैसे? सपोज मैंने, अच्छा, एक ड्रॉप मैंने अज्यूम कर लेते कि एक ड्रॉप जो हम ऐड कर रहे हैं दैट इज कैरिंग 0.5 ml ऑफ एसिड. एक ड्रॉप में कितना एसिड आ रहा है मेरे फ्लास्क में? 0.5 ml. ठीक है ना? तो 20 ड्रॉप्स के बाद हमने 10 ml ऐड कर दिया होगा एसिड, राइट? 10 ml एसिड एडिशन के बाद let us assume 1 drop from burette adds 0.5 ml of acid solution to the flask. ठीक है? Therefore, upon addition of any such drops, we will have
added to the solution in flask is equal to V1 plus N into this 0.5 ml can also be written as, I can write it small v. Is it okay? N into small v. Moles of acid added N into V into molarity of this acid which we have added. Let us call it N2 and इसका concentration हमको पता नहीं है, so I am calling it M1. Is this much? Is it okay? Now next thing is, और यहाँ पर एक चीज और हम लोग को शुरू में जानना रहता है, whether this acid is monobasic और डाइबेसिक, यानी ये दोनों बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, what is their nature? Sorry, are they monobasic और डाइबेसिक? इनका n फैक्टर क्या है? Right now we are considering monoacidic base. Both of them have n factor 1. n factor is equal to 1 और इसका भी n factor 1 है. ठीक है, ये हम लोग assume कर रहे हैं इस point of time पे. आगे के cases में I am going to vary that to n factor को differ करके भी हम calculations कर सकते हैं. Not a big deal. But for now, to keep it simple, I am making the n factor equal to 1. n factor 1 हो गया, तो जितना moles of acid हम add करेंगे उतना moles of base क्या होगा? Neutralize हो जाएगा. Am I making sense? Moles of base in flask. Its concentration is yet unknown, but I have assumed it to be M1, and therefore M1 into V1 is the moles of the base. Out of these many moles, this many mole has got neutralized, right? That is how it is going to be. So it's going to be HA, the acid, strong acid, BOH, the strong base. They are reacting together to form AB, salt, and plus water. Now initially HA ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम डाल रहे हैं. बेस कितना है? M1V1. एसिड हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं. So I have till now put N into V and इसका concentration M2 है. तो NV into MT इतने मोल्स डाल दिए मैंने. इतने मोल्स डालें तो आफ्टर रिएक्शन इनिशियली इतने मोल्स दोनों के हैं, तो आफ्टर रिएक्शन क्या बचेगा? आफ्टर रिएक्शन ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी स्मॉलर. ठीक है, HA जो होगा वो कम रहेगा जब तक N की वैल्यू सब्सटेंशियली लार्ज हो करके BOH को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर लेता है, तब तक
HA जो होगा वही हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, दैट इज द वन व्हिच इज गेटिंग यूटिलाइज्ड कंप्लीटली, राइट। जो ब्यूरेट से हम डाल रहे होंगे वही चीज कंज्यूम हो रहा होगा, so this is obviously going to get to zero and BOH का अमाउंट कितना बचेगा, M1V1 minus NVM2, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम विल बी V1 plus NV, therefore concentration of BOH in the solution क्या हो जाएगा, it will become M1V1 minus NVM2 divided by V1 plus NV. Is it okay? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को। बेस का कंसंट्रेशन कम हुआ तो पीएच वैल्यू सॉरी H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इज इट ओके? BOH कम हुआ तो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा मतलब pH क्या होगा, डिक्रीज होगा, and a time will come when these things, these two things are going to equalize, and for this case it is equalizing at, this is equalizing at 50 ml of the acid, ठीक है। तो 50 ml of the acid पे न्यूट्रलाइज हो रहा है, and in neutralization point पर the volume of solution will be 100 ml, am I right? और फिर कैलकुलेशन से हमको ये भी पता चल रहा है कि M1 जो है बेस जो है दैट इज अगेन ऑफ 0.2 मोलर, ठीक है। यहाँ बैक कैलकुलेशन से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल या नंबर ऑफ मोल्स की इक्वालिटी करके इन फैक्टर 1 है तो आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस एज 0.2 मोलर। इसका भी 50 ml वॉल्यूम यूज हो रहा है, हाँ, तो इसका कंसंट्रेशन ऑब्वियसली 0.2 मोलर रहना चाहिए, क्लियर। और वेरिएशन को अगर इसके स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के टाइट्रेशन के वेरिएशन, पीएच वेरिएशन को अगर हम प्लॉट करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट थिंग्स लाइक दिस और अ ग्राफ which is going to look something like this. Okay. See ये generally 0.1 मोलर या 0.2 मोलर का ग्राफ जो होगा that is going to look like this. 0.1 मोलर बेस या 0.2 मोलर बेस हमने लिया और 0.2 मोलर एसिड के साथ अगर हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं 0.2 मोलर एसिड से
So the graph is going to look like this. If I am going to take a stronger base, ठीक है, suppose मैंने 1 molar लिया base का, it's going to look almost the same with certain ठीक है, और एसिड में हम क्या पिक कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिस चीज से न्यूट्रलाइज करा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि how my lower portion of the curve is going to be. If my acid is a stronger one, have more concentration or higher concentration, this curve will is bound to go a bit lower. pH थोड़ा ज्यादा रहेगा, sorry, pH थोड़ा ज्यादा कम रहेगा in order to indicate the concentration of H plus ion. So 1 molar solution के लिए 1 molar base के लिए ग्रीन वाली लाइन, और अगर एसिड भी 1 मोलर है तो ये नीचे ग्रीन वाला लाइन. लेकिन अगर मैं 0.2 मोलर एसिड से कर रहा हूँ टाइट्रेट, तो 0.2 मोलर एसिड से टाइट्रेट कर रहा हूँ तो ऊपर से 1 मोलर बेस को 0.2 मोलर से कर रहा हूँ तो ये 14 से स्टार्ट होएगा, एंड ये वाला जीरो लाइन से थोड़ा ज्यादा ऊपर रहेगा, और 1 मोलर एसिड करेंगे तो इट विल बिकम वेरी क्लोज टू जीरो लाइन. ठीक है, am I making sense? Yes, sir. So the graph is going to look like this, and there is an important point over here to be noticed. This point is known as equivalence point. Equivalence point. एग्जाम में सॉरी प्रैक्टिकल्स में कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, मेथड टू आइडेंटिफाई इट, जहां से कर्व चालू हुआ है ना, ये वाला ड्रॉप, ये पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, और जहां पर लगभग ये ड्रॉप जो है खत्म हो रहा है, ये वाला पॉइंट लेते हैं, और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट से हम एक्सट्रापोलेट करते हैं. ठीक है, that is how this point is find out. Once this is known, we put our this is the pH at equivalence point. pH at equivalence point. pH equivalence. ठीक है, और इसमें हमारा pH चेंज जो है that is quite sharp. शुरू में नेचर ऑफ सॉल्यूशन इन द फ्लास्क क्या रहेगा, बेसिक रहेगा. आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा. दिस इज एसिडिक जोन, इज इट ओके, एंड दिस इज बेसिक जोन. इक्विवेलेंट पॉइंट के पहले बेसिक और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद it's going to be acidic, right? Now looking at that, इस लिस्ट में से which all indicator do you guys think can work nicely to indicate the end point of the reaction? Knowing that equivalence point के बाद हमारा end point आता है, मतलब जब हम वॉल्यूम ऑफ एसिड ऐड कर रहे होंगे तो इक्विवेलेंस पॉइंट मेरा पहले आएगा. दिस इज माय इक्विवेलेंस पॉइंट V2, ठीक है ना, और एंड पॉइंट इसके जस्ट बाद आएगा. इंडिकेटर हमको इंडिकेट करेगा
और इंडिकेटर थोड़ी देर बाद इंडिकेशन देता है. इज इट ओके? हेलो. हाँ. So what do you think, which among these indicators is going to work well with our as a good indicator to indicate the end point of this particular reaction of strong acid and strong base put in flask and strong acid being dropped from burette. बाद में solution कैसा होना है? इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद सॉल्यूशन का नेचर कैसा होना है? एसिड. एसिडिक. तो इंडिकेटर कौन सा चूज करेंगे हम? वो इंडिकेटर जो एसिडिक जोन को इंडिकेट करे, राइट? उसी को पिक करेंगे ना, जो एसिडिक जोन Yes, में sir. काम करे या एसिडिक जोन के चेंजेस को एसिडिक जोन में अपना कलर चेंज कर पाए, वैसे इंडिकेटर को हम पिक करेंगे. अदरवाइज क्या पॉइंट बनता है? अदरवाइज हमको पता कैसे चलेगा कि खत्म हो गया रिएक्शन, राइट? So which all are going to be the good indicators for it? Can you see from the list and let me know? Sir, litmus. Which all can indicate us? Litmus. ठीक है. और Bromothiamol blue. हाँ, basically everything above litmus, नहीं, every bromothiamol blue नहीं, anything above litmus is going to be a good acidic indicator. ठीक है. अब इसमें दूसरी चीज हमको ये देखनी होती है कि just at equivalence point, just after the equivalence point, how will be the pH of the solution be? ठीक है. तो अभी देखो pH of the solution, जैसे हमने न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट 50 ml पर अटेंड किया, पहला ड्रॉप जब आएगा तो 0.5 ml हमको एसिड आया एंड इसकी मोलैरिटी क्या है? 0.2 मोलर. ठीक है. यानी कितना मोल्स आया? आई एम गेटिंग 0.01 मोल मिलीमोल. ठीक है. 0.01 millimole of the acid in 100 ml of solution. 50 ऐड किया हुआ था, 50 पहले से था, 50 एसिड ऐड करके न्यूट्रलाइज किया गया और ऊपर से 0.5 ml और ऐड किया गया है. तो अभी क्या हो रहा है? ये 100 प्लस 0.5, इसको 100 ही रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मिलीलीटर्स तो मिली कैंसिल हो जाएगा. It's 0.01 by 100, that is 10 to the power minus 4. ठीक है. ये हो जाएगा कंसेंट्रेशन मेरे एसिड का. दूसरा ड्रॉप जब हम डालेंगे तो by that time 1 ml of 0.2 molars would have been added. This would have easily become 0.2. एक सेकंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है. दिस इज 0.1 मोल, 0.1 मिलीमोल. ठीक है. इट्स नॉट 0.01, इट्स 0.1 मिलीमोल. ये भी वैल्यू, ये 0.1 हो जाएगा and therefore this will become 10 to the power minus 3 molar. ठीक है.
दो ड्रॉप्स के बाद it is going to be this, and this will eventually become approximately 2 into 10 to the power minus 3 molar. ठीक है. So concentration will now start building up. यहाँ पर pH क्या हो जाएगा? So अगर strong acid, strong base का हम titration कर रहे हैं, the moment I add one extra drop, my pH will immediately shoot from 7 to what? 7 से कहाँ चला जाएगा? 3 पर आ जाएगा. Is it okay? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Very good. So let us fall back again. अब मुझे लिस्ट में से देख करके बताओ कौन सा सुटेबल रहेगा, कौन कौन से सुटेबल रहेंगे जो pH 3 को इंडिकेट कर पाए. अब लिटमस ठीक है काम करेगा, नो डाउट. But litmus works well in the range of 5 to 9, and we have much stronger acid. तो पता चला हमारा लिटमस जो है वो ब्लीच हो गया. सर लिटमस ब्लीच हो गया मींस वो कलरलेस हो गया, राइट. लिटमस ब्लीच हो गया इसका मतलब वो कलरलेस हो गया. उसकी जनरली लिटमस का क्या होता है, एसिड में डालोगे तो ब्लू कलर, सॉरी अरे लिटमस में सॉरी एसिड में रेड कलर और बेस में ब्लू कलर, और बेस वाले सॉल्यूशन से फिर से एसिड में लेकर के आओगे उसको तो वो रेड कलर वापस रीगेन कर लेता है, और फिर से उसको बेस में ले जाओगे तो ब्लू कलर रीगेन कर लेगा. अभी क्या हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा एसिडिक में आपने डाल दिया उसको तो उसका कलर जो है वो परमानेंटली खत्म हो जाए, मतलब वो फिर ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा. वहां से निकाल करके आप लेकर के दूसरे में लेकर के आओगे, यानी एसिड से बेस में लेकर के आओगे तो उसको ब्लू हो जाना चाहिए था, वो नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड इट हैज बीन ब्लीच्ड, या फिर रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा. यस सॉरी, कुछ रिप्लाई किया हम लोगों ने क्या, थाइमोल एंड मिथाइल ऑरेंज. हाँ ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इज वन व्हिच इज गोइंग टू वर्क फॉर अस. थाइमोल ब्लू भी करेगा, फर्स्ट चेंज करता है. yes, these are the two basically things including this which are going to work for us in a nice manner. However, among them, I mean, we generally prefer this one. थाइमोल ब्लू के साथ ये फर्स्ट चेंज और सेकंड चेंज यहाँ पर होता है, ये बेसिक वाला करता है. थाइमोल ब्लू को इसलिए अवॉइड करते हैं, दोनों तरफ को फर्स्ट वाला जैसे H2SO4 होता है ना, दो एसिडिक होते हैं, दो एसिडिटी होती है उसकी, पहला निकलता है और फिर दूसरा निकलता है. तो पहला वाला जब चेंज होता है, एक कलर चेंज, यहाँ पर भी हाइड्रोजन वगैरह के निकलने की वजह से कलर चेंज होता है. दैट आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस इन थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स. इन सारे इंडिकेटर्स की थ्योरी भी अलग से एक है, वो आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू गाइस. तो सो आई मीन दैट इज अ रीजन. इसमें भी दो H+ होते हैं,
वो एक पहला H+ जब लूज करता है इट चेंजेस इट्स कलर, और दूसरा वाला भी H+ लूज करता है तो इट चेंजेस इट्स कलर फर्दर। ठीक है, ये दो चेंजेस रहते हैं उसके अंदर, इसलिए उसको जनरली अवॉइड करते हैं हम लोग। अदरवाइज दैट कैन आल्सो एक्ट एज एन, सो फॉर दैट मैटर प्राइमरली मिथाइल ऑरेंज को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। अदरवाइज ये तीनों ही जो है 2, 3, 4 दे आर गोइंग टू वर्क एज अ गुड इंडिकेटर। कैन मिथाइल वायलेट वर्क? मिथाइल वायलेट वर्क कर सकता है क्या हमारे लिए? नो, इट विल डेफिनेटली नॉट वर्क, क्योंकि हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद पीएच जो है वो 1.6 अब तक पहुंचा ही नहीं है। इट विल गो टू 1.6 लेवल वेरी लेट। बहुत सारे ड्रॉप्स हम ऐड कर लेंगे एसिड के, तब फिर वो 1.6 तक पहुंचेगा। दैट मींस हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट बहुत पीछे छूट चुका होगा। सो बेसिकली जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट मिला मुझे, उसके जस्ट इमीडिएट वाले ड्रॉप में जो भी इंडिकेटर मुझे बेस्ट कलर चेंज देगा, दैट इज द वन व्हिच इज गोइंग टू बी माय इंडिकेटर, गुड इंडिकेटर। सो गुड इंडिकेटर कैसे पिक करना है, इसका आपको एक तो आइडिया लगा। नंबर 1, पीएच जस्ट आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट किस जोन में रहेगा, इसका भी हमको आइडिया लेना है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में इस तरीके से केस होता है। अब मान लो हमारा ये जो है दूसरा केस जो रहता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एनालेट है वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रान स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ब्यूरेट में डाला हमने ब्यूरेट, और ये है हमारा फ्लास्क में आ गया। एन फैक्टर फिर से 1 ले रहे हैं दोनों का, ठीक है, एन फैक्टर 1। How will the graph look like? Do I need to again go through all those points? How will the graph look like? शुरू में pH कैसा रहेगा? एसिड फ्लास्क के अंदर है तो फ्लास्क का pH कैसा रहेगा? Will it be 14, close to 14 or close to 0? एसिड है फ्लास्क में, फ्लास्क का pH कैसा रहेगा? Yes, it will be. So could you repeat your question? हाँ, I'm just asking. Strong acid flask में पड़ा हुआ है as a analyte. What pH could we expect out of it? Will it be high? Will it be low? That is, will it be close to 14 or close to 0? Close to 14. Acid है तो full close to 14 क्यों रहेगा? Yes, sir. Yes, my bad, my bad. It will be close to 0. Yes, sir. सारे लोगों को पता चल रहा है। देखो एसिड है तो 7 से नीचे ही रहेगा,
और चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब इसका पीएच जो है वो काफी कम रहने वाला है, ठीक है। जैसे 0.1 मोलर है, मतलब H प्लस अगर 1 लीटर लेते हैं सॉल्यूशन तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10 ml भी लेंगे तब भी H प्लस का 0.1 मोलर है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर हो जाएगा। दैट मीन्स पीएच जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ठीक है। 0.1 मोलर से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेंगे तो और कम हो जाएगा पीएच। सो इसका जनरली 1 से मतलब हम स्टार्ट कर सकते हैं फॉर सेफ साइड, एंड 1 से 0.1 मोलर अगर रहता है, 0.1 मोलर एसिड, so it is going to start from 1 and it is going to look something like yeah, this is how the graph is going to look like. This is 0.1 molar, 0.1 molar acid, and here I am taking 0.1 molar base. 0.1 मोलर ना हो करके अगर 1 मोलर रहेगा तो ये कुछ यहाँ से चालू होएगा, टचिंग जीरो लाइन, कम टच नहीं करेगा, जस्ट थोड़ा सा ऊपर से चालू होएगा। ठीक है, ये है 1 मोलर बेस एंड ये है इधर 1 मोलर एसिड, 1 molar acid. This is again how the curve is going to look like, 0 line 1. यहाँ पर भी हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट जो होगा that is going to lie in this zone. ठीक है, ये यहाँ से चेंज चालू हुआ और यहाँ से चेंज खत्म हुआ। यहाँ से चेंज लगभग चालू हुआ है, यहाँ पे चेंज लगभग खत्म हुआ है। The midpoint of this is approximately this. So the थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मॉडिफाई, ये लगभग यहाँ से पास करेगा, दिस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, nevertheless bear with me. And this is pH at neutralization point or equivalence point. pH equivalence. ठीक है, और इस केस में हमारा इंडिकेटर कौन सा अच्छा काम करेगा?
2 मिनट खाली रुक जाओ, वी आर गोइंग टू, मतलब मैं भी लेक्चर खत्म ही कर रहा हूँ. So if I am going to titrate the base, the acid with a base being put from outside, which of these uh, this thing is going to work most properly? Obviously we are taking the same configurations, बस कर क्या रहे हैं, बेस जो पहले हम ऊपर से डाल रहे थे उसको अभी फ्लास्क में रख लिया, सॉरी बेस जो फ्लास्क में रखे हुए थे उसको ऊपर से डाल रहे हैं, और एसिड जो ब्यूरेट से डाल रहे थे हम उसको हमने फ्लास्क में रख लिया है. ठीक है, दैट इज द that is the only difference which we have created. तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद सम अमाउंट ऑफ बेस ऐड करने के बाद, ये अगर मेरा इक्विवेलेंस पॉइंट है V2, तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद नेचर ऑफ सॉल्यूशन मेरा कैसा रहेगा, इट विल बिकम बेसिक, और उसके पहले कैसा रहेगा, एसिडिक. सो माय सॉल्यूशन इज चेंजिंग फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक, and therefore I require an indicator which can indicate the basic nature of the solution. और जैसे वहां पर अगर 0.2 मोलर सॉल्यूशन हमने लिया है, 0.2 मोलर सॉल्यूशन लिया है एसिड का और बेस दोनों का न्यूट्रलाइजेशन के लिए, तो एक ड्रॉप एक्स्ट्रा गिरने से पीओएच जो है मेरा या पीएच जो है मेरा, the single extra drop is going to make my pOH to 3 and pH to 11. ठीक है ना, वन सिंगल ड्रॉप 10 to the power -3 ही कंसेंट्रेशन रहेगा ना OH माइनस का, जैसा पिछले केस में हो रहा था. पिछले केस में H प्लस का कंसेंट्रेशन 10 to the power -3 हुआ था. इस बार बेस चूंकि ऊपर से डाल रहे तो न्यूट्रलाइजेशन पर दोनों बराबर रहेंगे, और उसके इमीडिएट बाद जो पहला ड्रॉप बेस का हम डालेंगे उससे मेरा कंसेंट्रेशन 10 to the power -3 मोलर हो जाएगा. That means POH will become, concentration of OH minus will become 10 to the power -3. POH जो है वो 3 हो जाएगा, and pH जो है वो 14 minus POH होकर के 11 हो जाएगा. Is this okay? अब यहाँ से हमारा बेस्ट सुटेबल इंडिकेटर कौन सा है जो 11 को चेंज शो कर पाए? इट्स गोइंग टू बी थायमोल थैलीन या फेनॉल थैलीन, फेनोप्थिलीन या फिर थायमोल थैलीन. ठीक है, दीज आर समथिंग, ये अल्जेरियन येलो, दीज आर द इंडिकेटर्स जो 11 के रेंज को इंडिकेट कर पाएंगे सेफली. Is it okay? Yes. Yes sir. ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं. मंडे को फिर आगे के टाइट्रेशन केसेस जो है, अभी हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस किया है, इसके बाद हम लोगों का वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये दो होंगे. वीक एसिड वीक बेस वाला जो है उसका टाइट्रेशन हम जनरली करते ही नहीं है, और उसका कर्व जो होता है वो, उसमें हमको शार्प चेंजेस नहीं मिलते हैं, तो इंडिकेटर्स वर्क नहीं कर पाते हैं. हाँ, टेस्ट होगा, एडवांस वाला रहेगा. ओके, ठीक है फिर. Sir, could you scroll down for a second? यस.